Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 9 for the class 11th. We are discussing the chapter equilibrium, and in the last video lecture, that is video lecture number 8, we had discussed the law of chemical equilibrium, and we had also discussed the equilibrium constant in terms of molar concentration, that is Kc, and then equilibrium constant in terms of partial pressure of reactants and products at equilibrium, that we call as Kp. So my dear students, this Kc means the equilibrium constant in terms of molar concentration. That means that in the equilibrium law, when you are expressing the reactants and the products in terms of molar concentration, then we call the equilibrium constant as equilibrium constant in terms of concentration, that is Kc. But for a gaseous reaction, if you if you represent the equilibrium constant in terms of the partial pressures of the reactants and products at equilibrium, then we call such equilibrium constant as Kp. So today, my dear students, we are going to discuss what is the relationship between the Kp and Kc, means equilibrium constant in terms of concentration and equilibrium constant in terms of partial pressure. इसका मतलब ये है that कभी कभार में क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, that अगर आपको एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज Kc, आप Kp फाइंड करो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार. तो टुडेस टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. So my dear students, in order to understand this concept, what we have done, we have taken a general reversible gaseous reaction. मैंने एक general reversible एक gaseous reaction ली है यहाँ पे, वो आपके सामने लिखी है that these are the reactants and these are the products. My dear students, reactants here is reactant A, reactant B, and here are the stoichiometric coefficients with it. We have already discussed those things in previous lectures. And this is the product X and another product is Y, and small x and small y are the stoichiometric coefficients or the product X and Y. In other words, we can say small a represents the number of moles of reactant A, small b represents the number of moles of reactant B, small x represents the number of moles of product X, and small y represents the number of moles of product Y. Now in order to understand this relationship between Kp and Kc, what I have done here, I have taken a general reversible gaseous reaction. उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस रिएक्शन के लिए क्या करना है, लॉग मास एक्शन अप्लाई करके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, इस रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. तो वही मैंने किया है माय डियर स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. इस प्रोसेस के लिए, इस गैसियस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो किसके बराबर होगा, अगर आप लॉग मास एक्शन करेंगे, मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स each raised to the power equal to stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentration of reactants each raised to the power equal to stoichiometric coefficient. तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है x, तो मैंने x लिया, उसका stoichiometric coefficient स्मॉल x है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद है प्रोडक्ट y, उसका stoichiometric coefficient स्मॉल y है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स जो हो गए वो a raised to the power a and b raised to the power b, वो मैंने यहाँ पे लिखा. So my dear students, this is equilibrium constant for this reaction in terms of molar concentration. Now what I have done, I have represented this, means यहाँ पे कहने का मतलब है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे x is the active mass of product X, या इसको आप molar concentration भी कह सकते हो. इसको मैं for the sake of simplicity ऐसे लिखूंगा, Cx. ये एक ही बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन मैं थोड़ा इसे इजी करूंगा इस टॉपिक को. X represents the molar concentration. तो यहाँ पे मैंने C के बजाय लिखा molar concentration, means concentration of X. This and this means one and the same thing. तो मैंने किया क्या है, देखो X के बजाय मैंने लिखा Cx. इसका और इसका मतलब यही है, बाकी सेम है, raised to the power X. Y के बजाय मैंने लिखा Cy, raised to the power Y. A के बजाय मैंने लिखा Ca, और B के बजाय मैंने लिखा Cb. तो यहाँ पे मैंने आपको साइड में लिखा है, where Cx, Cy, Ca and Cb they represent the active mass. बिल्कुल वही है, जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, और they represent the molar concentration of substances A, B, X and Y, where A, B are reactants,
X and Y are product but at equilibrium, because हम equilibrium constant की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मैं आप डायरेक्टली लिखूं Kc किसके बराबर है? Kc बराबर है इसके Cx raised to the power x multiplied by Cy raised to the power y divided by Ca raised to the power small a into Cb raised to the power small b, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो this represents for this particular reaction which is a gaseous reaction. So in terms of molar concentration, the equilibrium constant for this reaction is denoted by Kc, and Kc, that is the equilibrium constant in terms of molar concentration, is given by equation A. My dear students, अगर मैं लिखूंगा इसी reaction के लिए, because ये gaseous reaction है। अब जब ये गैसियस रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे या तो वो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन दिए होंगे या तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स दिए होंगे। मानो मैं फिर से यहाँ पे कहूंगा आपको, अगर मैं ये पार्ट इरेज करूंगा, मैंने अभी कहा दैट जब ये रिवर्सिबल इक्वेशन जो है, जो कि मैंने ऊपर लिखी यहाँ पे, जब गैसियस है ये डेफिनेटली, अब जब गैसियस है या तो कंसंट्रेशन दी होगी या तो पार्शियल प्रेशर्स दी होगी। अगर कंसंट्रेशन दी है, फॉर एग्जांपल ए की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, मैंने वो ऐसे लिखा Ca। बताओ बी की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, मैंने लिखा वो ऐसे Cb। ये मैं समझा चुका हूं आपको। x की कितनी है, मान लो Cx, और y की कितनी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, वो मैंने ऐसे लिखा Cy। C का मतलब है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन के लिए, दैट विल बी डिनोटेड बाय Kc, और वो इसके बराबर होगा। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अगर सेम रिएक्शन जो कि गैसियस है, लेकिन यहां पे ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं किए हुए हैं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मतलब एट इक्विलिब्रियम मान लो पार्शियल प्रेशर, बिकॉज़ ये गैसियस रिएक्शन है, मान लो पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट ए का रिप्रेजेंट करेंगे हम Pa से, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ऐसे Pa, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट B इज रिप्रेजेंटेड बाय Pb। देखिए यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट X इज रिप्रेजेंटेड बाय Px, एंड मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट Y इज रिप्रेजेंटेड बाय Py, ऐसे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उस टाइम क्या करेंगे आप माय डियर स्टूडेंट्स का, उस टाइम आप इक्वेशन को चेंज करेंगे, Kc वहां पे चेंज होगा इनटू Kp। इस बात को समझिए आप। मगर बिफोर कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा हूं। चलो मैं पहले लिखता हूं। तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, यहां पे मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बताओ Kc लिखोगे उस टाइम की Kp लिखोगे? तो मैं यहां पे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स of course of reactants and products at equilibrium। तो my dear students, Kc चेंज होगा by Kp, तो उस टाइम हम ऐसे लिखेंगे Kp, बिकॉज़ मैं यहाँ पार्शियल प्रेशर्स के तौर पर इसको दिखा रहा हूं। तो Kp will be equivalent to, देखो अब क्या होगा, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, जहां पे हम Cx लिख रहे थे वहां पे हम लिखेंगे Px, बाकी बिल्कुल सेम है। यानी कि अब मैं मोलर कंसंट्रेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि पार्शियल प्रेशर दे रहा हूं। देखो Cy के बजाय लिखेंगे Py, डिवाइडेड बाई Ca के बजाय लिखेंगे Pa, चेक कीजिए, रेज़ टू द पावर a, एंड Cb के बजाय लिखेंगे Pb, देखिए यहां पे रेज़ टू द पावर b। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उस टाइम उसको Kc कहेंगे और इस टाइम इसको Kp कहेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। देखिए फिलहाल मैं रखूंगा इस इक्वेशन का नाम, लेट्स सपोज इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन P। चेक कीजिए आराम से आप। फिलहाल मैं ये वाला इरेज करूंगा, ये हमें बाद में चाहिए, आप इस पे ध्यान देना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, हालांकि वो कुछ स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत इजीली समझ आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखिए। हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में है। अगर आपको ये इक्वेशन इसका कोई अंदाजा नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स को है उनको जल्दी समझ आएगा, जिनको नहीं है वो प्लीज एक इक्वेशन याद रखेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं, मैं यहां पे लिखूंगा, उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन ये है, PV is equal to nRT। इस चीज को आप प्लीज समझिए, PV is equal to nRT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसको आप प्लीज याद रखिए। Well, P is the pressure of gas, V is the volume occupied by gas, N is the number of moles of gas, R को कहते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
ये चीजें आप सीखेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, इसको केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये P इज इक्वल टू N, ये V को डिवाइड करूंगा मैं ऐसे, इज इक्वल टू R इंटू T। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, विच फर्दर इज इक्वल टू, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो N डिवाइडेड बाय V, ऐसे लिखते हैं हम, N डिवाइडेड बाय V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं C, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसी को कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं। तो क्या मैं N बाय V के बजाय लिखूंगा C और उसके बजाय आएगा RT। तो इसका मतलब है P जो है बराबर प्रेशर। आप या मैंने क्यों ऐसा किया, बिकॉज़ मुझे पार्शियल प्रेशर के बजाय ये टर्म इस्तेमाल करनी है। तो P इज इक्वल टू CRT, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है चैप्टर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं पता है तो प्लीज ये बात को याद रखेंगे। सो P is equal to CRT means pressure exerted by the gas is equal to its molar concentration, that is number of moles per unit volume, R is the universal gas constant, और T जो होता है उसको टेम्परेचर इन केल्विन कहते हैं। देखिए अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, for gases A, B, X and Y। बता मुझे पार्शियल प्रेशर में कैसे लिखूंगा। देखिए पार्शियल, और यहाँ पे आप याद रखेंगे that N डिवाइडेड बाय V होता है बराबर C के। देखिए अब A के लिए क्या होगा, A गैस के लिए पार्शियल प्रेशर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, PA से। तो बजाओ इस इक्वेशन के हिसाब से वो किसके बराबर होगा, PA हो गया बराबर CA इंटू R इंटू T। बताओ PB किसके बराबर हो गया, PB हो गया बराबर CB इंटू R इंटू T। बताओ Px किसके बराबर हो गया, वो हो गया Cx इंटू R इंटू T। मैं खाली सबस्टिट्यूट वैल्यू कर रहा हूं। और बताओ Py किसके बराबर हो गया, हो गया Cy इंटू R इंटू T। अब देखिए ये सारे वैल्यू जो है ये आप सबस्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। जब आप इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे तो बताया माय डियर स्टूडेंट्स क्या बना। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं देखिए अब आ जाइए Kp कर, बताइए Kp किसके बराबर होगा, देखो Kp इज इक्वल टू, बताइए Px के बजाय मैं क्या लिखूंगा, Px के बजाय लिखेंगे Cx इंटू R इंटू T। मैं लिखूंगा Cx इंटू R इंटू T, लेकिन उसका रेजल्ट पावर अपना x होगा वो ऊपर लिखेंगे। बताओ Py के बजाय क्या लिखेंगे, Py के बजाय लिखेंगे Cy इंटू R इंटू T और ऊपर लिखेंगे स्मॉल y डिवाइडेड बाय, बताओ PA और PB के बजाय क्या लिखेंगे, CA इंटू R इंटू T रेजल्ट पावर स्मॉल a एंड इंटू CB इंटू R इंटू T रेजल्ट पावर स्मॉल b। यहां तक सबको समझ आ गया। देखा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी R इंटू T है, यहाँ पे भी R इंटू T है, यहाँ पे भी R इंटू T है, यहाँ पे भी R इंटू T। तो मैं कॉमन निकालूंगा। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, therefore Kp is equal to, my dear students please try to understand, Kp is equal to, चेक कीजिए यहाँ पे। देखिए मैं लिखूंगा Cx रेज़ पावर x, बात को समझिए, और Cy रेज़ पावर y को मैं ऐसे लिखूंगा, चेक कीजिए, इनटू ऐसे लिखते हैं Cy रेज़ पावर y। अब इन दोनों के बाहर मैं क्या करूंगा काम, सिर्फ R इंटू टी यहाँ पे भी है, R इंटू टी यहाँ पे भी है, तो मैं R इंटू टी को कॉमन निकालूंगा। जब मैंने कॉमन निकाला तो ऊपर लिखूंगा सीधे x प्लस वाई। आई होप ये समझ आ गए, बहुत सिंपल स्टेप है। यानी कि अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये ऐसे है R इंटू टी रेज़ पावर x, R इंटू टी रेज़ पावर y, ये ऐसे है R इंटू टी रेज़ पावर x इंटू R इंटू टी रेज़ पावर y। अगर मैं अलग अलग लिखूंगा तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, तो वही हम लिखते हैं R t रेज़ पावर x प्लस y। वो स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा, तो होप ये आपको समझ आ गया। तो मैंने ऐसे डायरेक्टली लिखा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी R एंड t को हम कॉमन करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो मैं पहले बाहर निकालता हूँ, तो निकालूंगा मैं R t बाहर, लेकिन यहाँ पे a प्लस b बन जाएगा वो, देखिए। और यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, एक तो रहेगा Ca, उसका अपना पावर a रहेगा, और Cb रहेगा, उसका अपना पावर b रहेगा। इसको हम होल ब्रैकेट ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये RT x प्लस y r, तो मैं इस पार्ट को ऊपर करूंगा, तो देखो क्या बनेगा। तो मैं ये पार्ट इरेज करूंगा यहाँ पे, देखिए तो किसके बराबर होगा Kp, मैं ऐसे लिखूंगा Kp इज इक्वल टू, चेक कीजिए। अब देखो इस पार्ट को अगर मैं ऐसे लिखूंगा, चलो मैं पहले ऊपर करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Cx रेज़ पावर x
इंटू सी वाई रेज़ड पावर वाई डिवाइडेड बाई सी ए रेज़ड पावर ए इंटू सी बी रेज़ड पावर बी और इंटू जो ये है आर टी, उसको मैं ऊपर लूंगा तो वो बन जाएगा आर टी, वहां पे ऑलरेडी था एक्स प्लस वाई और ये जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये बनेगा आर टी ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी। ये सबको समझ आ गया? बिकॉज जब पावर नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो ये माइनस में जाएगा। तो बता देखो यहाँ पे फिर से देखो बेसिस ऑफ सेम पावर्स भी एडेड, तो क्या मैं लिखूंगा फिर से के पी इज इक्वल टू, मैं फिर से लिखूंगा सी एक्स रेज़ड पावर एक्स सी वाई रेज़ड पावर वाई डिवाइडेड बाई ये इरेज करते हैं, देखो सी ए रेज़ड पावर ए इंटू सी बी रेज़ड पावर बी, तो बेसिस ऑफ सेम पावर्स विल बी एडेड, तो यहाँ पे बनेगा आर टी, देखिए आर टी एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस हो जाएगा उसके साथ माइनस हो जाएगा, तो फिर से वो ऐसे आएगा एक्स प्लस वाई, मैं ऐसे लिखूंगा माइनस ए प्लस बी, सिंपल एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। अब देखिए मुझे बताओ ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ये वाली सी एक्स रेज़ड पावर एक्स सी वाई रेज़ड पावर वाई सी ए रेज़ड पावर ए सी बी रेज़ड पावर ए, वो बराबर है के सी। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट हियर मैं लिखूंगा के पी इज इक्वल टू, इसके बजाय मैं लिखूंगा के सी, तो ये पार्ट जो ये इतना ये पार्ट जिधर के सी के बराबर है, तो इसके बजाय मैंने लिखा के सी और बचा क्या उसके बाद आर टी। अब क्या है यहाँ पे आर टी, यहाँ पे है एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे डेल्टा एन। मैं आपको समझाऊंगा ये डेल्टा एन क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वायर वायर वायर, पहले एक्स प्लस वाई जो है एक्स प्लस वाई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इस बात को आप समझिए माय डियर स्टूडेंट्स। एंड ए प्लस बी जो है दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, दे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सॉरी ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, और A प्लस बी जो है दे आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स माय डियर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप देखोगे x और y जो था वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था प्रोडक्ट x और y पे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे x प्लस वाई ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, और a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। आप इस चीज को समझिए, तो वही मैंने नीचे लिखा दैट x plus y represents the number of moles of gaseous products, आप इसको NP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, and A plus B represents the number of moles of gaseous reactants, मैं इसको NR से लिखता हूँ ऐसे। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूंगा, तो डेल्टा RT, देखो RT x plus y के बजाय मैं लिखूंगा NP और N उसके बजाय लिखूंगा मैं NR, देखो NP minus NR। तो what does it mean? देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं ये वाला पोर्शन रेज करूंगा, तो that means NP minus NR, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, this means Kp is equivalent to, देखो Kp is equivalent to Kc R into T, और उसके बाद NP minus NR के बजाय मैं सीधे लिखूंगा डेल्टा N। तो this is the equation, required equation that you have to understood, very important equation। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ और नीचे लिखूंगा मैं वायर डेल्टा एन जो है वो मैंने इस्तेमाल किया, वो होता है बराबर NP माइनस NR। तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन, और डेल्टा एन को कहते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ gaseous substances, my dear students, change in the number of gaseous students इसको कहते हैं। तो एक important conclusion जो आपने याद रखा, that the relationship between Kp and Kc is that Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc is the equilibrium constant in terms of molar concentration, R is the universal gas constant and T is the temperature in Kelvin। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा that R जो है इसको universal gas constant कहते हैं, this is called as universal gas constant, और is called as a universal gas constant, and T जो है इसको हम लेते हैं temperature in Kelvin।
टेम्परेचर इन केल्विन। तो मैं अभी R का वैल्यू आपको नहीं दूंगा, बाद में जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उस टाइम मैं आपको वैल्यू भी बताऊंगा, इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन माय डियर स्टूडेंट्स Kp एंड Kc। तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली देखो आपको प्रॉब्लम में क्या दिया होगा, सपोज आपको Kc दिया है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपको सिस्टम में दिया होगा और एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी होगी जिसमें आपको डेल्टा एन खुद निकालना है। डेल्टा एन किसके बराबर होता है, Np माइनस Nr। तो प्रॉब्लम जब हम बाद में करेंगे तो ये चीजें आपको सिखाएंगे। तो Np माइनस Nr जो है आप निकालोगे, डेल्टा एन भी मिलेगा, टेम्परेचर दिया होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता होगा, और सपोज आपको Kc दिया है तो आप Kp आराम से निकाल सकते हो। और कभी कभार आपको Kp दिया होगा, आपको Kc निकालना पड़ेगा, कभी आपको Kp Kc R तो पता ही है, डेल्टा N तो आप रिएक्शन से निकालेंगे तो आपको टेम्परेचर निकालना होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc. So relationship between Kp and Kc is that Kp is equal to Kc R into T delta N, where delta N is equal to number of moles of products minus number of moles of reactants. तो number of moles of products and number of moles of reactants आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो, तो आप फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो दिस वाज वीडियो लेक्चर नंबर 9 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। प्लीज वीडियो लेक्चर को आप डाउनलोड करें, रिपीटेडली देखिए, अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन द वीडियो लेक्चर नंबर 10। उसमें हम अब डेल्टा एन के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और हम यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।